Hello everyone. Online class 7th, subject science, chapter 14, light and associated phenomena. प्रकाश और संबंध घटना. We are all familiar with light and its uses. Light is the form of energy that makes things visual to us. In our daily life, we see light from many sources such as the sun, stars, electric bulb, torch, candle, TV, and mobile phone display. In earlier classes, you have learned about some properties of light, such as formation of shadow, reflection of light from mirror, and formation of images. In this chapter, we will learn about some more properties of light. हम सभी प्रकाश और इसके उपयोग से परिचित हैं. प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो चीज़ों को युग के रूप में जीवित बनाता है. हमारे दैनिक जीवन में हम कई स्रोतों जैसे सूर्य, तारों, बिजली के बल्ब, मशाल, मोमबत्ती, टीवी और मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले से प्रकाश को देखते हैं. ओके. कैटलियर कक्षाओं में आपने प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में सीखा होगा पिछली कक्षाओं में, जैसा कि छात्रों का निर्माण, दर्पणों से प्रकाश का प्रतिबिंब और छवियों का निर्माण. इस अध्याय में हम प्रकाश के कुछ और गुणों के बारे में जानेंगे. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश व्यवस्था का संबंध. When we switch on a torch in a dark room, we can see a beam of light which falls on objects. This beam of light is always straight and not curved or zigzag. This is an important property of light which states that light always travels in a straight line. It is also known as rectilinear propagation of light. It is because of this property that shadows are formed when light faces any obstruction. प्रकाश व्यवस्था का संबंध. जब हम एक अंधेरे कमरे में एक मशाल पर स्विच करते हैं या टॉर्च चलाते हैं तो हम प्रकाश की एक किरण को पा सकते हैं, देख सकते हैं, जो वस्तुओं पर गिरती है. प्रकाश की वह किरण हमेशा सीधी होती है और घुमावदार या वक्र नहीं होती है. यह प्रकाश को एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें कहा गया है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में यात्रा करता है. इस प्रकाश का एक सुव्यवस्थित प्रसार भी कहा जाता है. यह इस संपत्ति की वजह से है कि छाया तब बनती है जब प्रकाश किसी रुकावट का सामना करता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रभाव. When a bowler bowls to the batsman hits the ball and the ball changes its direction. Similarly, when light falls on an object, it changes its direction and bounces back. This bouncing back of lights is known as reflection of light. जब कोई गेंदबाज बल्लेबाज को गेंदबाजी करता है तो बल्लेबाज गेंद को हिट करता है और गेंद अपनी दिशा बदल देती है. इसी तरह जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अपनी दिशा बदल देती है और वापस उछलती है. और आर्ट को प्रकाश का परिवर्तन के रूप में जाना जाता है. प्रकाश को based on the surface from where light is reflected, reflection can be classified into two types, regular and irregular reflection. अब जहाँ प्रकाश परिलक्षित होता है, प्रतिबिंब के दो प्रकारों को वर्गीकृत
वर्गीकृत किया जा सकता है नियमित और सतह के आधार पर। रेगुलर रिफ्लेक्शन that takes place thought a regular and smooth surface is now as regular reflection। अब जो नियमित परिवर्तन एक नियमित और चिकनी सतह के माध्यम से होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। एंगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दैट टेक्स place thought a rough and dull surface is now as irregular or diffused reflection। Regular reflection scatters light in all directions and helps us to see things। अनियमित या विक्षेपित प्रतिबिंब परावर्तन जो किसी खुरदरी और सुस्त सतह से होता है अनियमित विसरित प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। अनियमित प्रतिबिंब सभी दिशाओं में प्रकाश बिखेरता है और हमें इन चीज़ों को देखने में मदद करता है। प्लेन मिरर समतल दर्पण। When we stand in front of the mirror, we are able to see our image. Our image in a mirror is or the same size as we are, and at the some distance from the mirror where we are standing. As we move back, the image also moves behind in the mirror. However, the image formed in a mirror is laterally inverted. Left side seems to be on the light and vice versa. It is not possible to take this image on a screen. Such an image which cannot be obtained on screen is called a virtual image। समतल दर्पण हम जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी छवि देख पाते हैं। दर्पण में हमारी छवि समान आकार की होती है। हम दर्पण से उसी दूरी पर हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। जैसा कि हम वापस आते हैं छवि भी दर्पण के पीछे चली जाती है। हालांकि दर्पण में बनी छवि बाद में उल्टी बाईं ओर लगती है। दाईं और इसके विपरीत हो इस छवि को स्क्रीन पर लेना संभव नहीं है। ऐसी छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी छवि कहा जाता है। The property of lateral inversion of the image in a plane mirror is applied in writing the word ambulance on vehicles that carry parents to hospital. This is done so that the driver in the other vehicles ahead of the ambulance can see the word ambulance clearly in the rear view mirror and give way immediately। दर्पण में छवि के पार्श्व उल्टा की संपत्ति को उन वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द लिखने में लागू किया जाता है जो मरीज को अस्पताल में ले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे में ड्राइवर हो और एम्बुलेंस के आगे वाले वाहन एम्बुलेंस शब्द को रियर व्यू मिरर के रूप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और तुरंत रास्ता दे सकते हैं। An image formed in a plane mirror showed the following characteristics। समतल दर्पण में बनी छवि निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाती है। Image formed in a plane mirror is upright और erect। समतल दर्पण से बनी छवि सीधी और उभरी हुई होती है। It is always virtual। यह हमेशा आभासी होती है। It is of the same size as the size of the object। यह वस्तु के आकार के समान आकार का होता है। The image formed in the mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of it। दर्पण में बनाई गई छवि दर्पण के पीछे उसी दूरी पर होती है जितनी वस्तु उसके समान होती है। Terms used in reflection of light। प्रकाश का इस्तेमाल की शर्तें। Some common terms used in reflection of light are given below। प्रकाश के परिवर्तन में प्रयुक्त कुछ सामान्य शब्द नीचे दिए गए हैं। Incident ray। The ray of light which fall in the surface of the reflective material or mirror
इज द इंसिडेंट रे। अब प्रकाश की किरण जो गिरती है वो प्रतिबिंब करने वाली सामग्री या दर्पण की सतह पर घट घटनाती है। रिफ्लेक्टेड रे, the ray of light which is sent back from the surface of the reflecting surface is the reflected rays। प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह की सतह से वापस भेजी जाती है उसे रिफ्लेक्टेड किरण कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, संयोग बिंद, द पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वह बिंदु जिस पर प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर प्रहार करती है वह संयोग बिंदु होती है। नॉर्मल, सामान्य, द perpendicular line drawn from the point of incidence on the reflecting surface is the normal। समान, प्रतिबिंब सतह पर घटना के बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा समान होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, घटना का कोण, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। घटना का कोण घटना किरण और सामान्य के बीच का कोण घटना का कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और सामान्य के बीच का कोण प्रतिबिंब का कोण है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सम प्लेन। घटनाओं का कोण, परावर्तन का कोण, वह घटना के बिंदु और पर सामान्य सभी एक ही निहित है। जो रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, वास्तविक और आभासी छवि। व्हेन यू सी ए मिरर you can see our image in the mirror. This image is virtual and cannot be projected on a screen. In a movie theater, the light from a projector falls on a screen and an image is formed on the screen which is real। जब आप एक दर्पण देखते हैं तो आप अपनी छवि दर्पण में देख सकते हैं। यह छवि आभासी है और इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। एक मूवी थिएटर में एक स्क्रीन पर प्रोजेक्टर फ्लोर के से प्रकाश और एक छवि बनाई जा सकती है जो वास्तविक होती है। एन इमेज फॉर्म्ड बाई ए converging beam of light is called a real image। Here the light rays actually meet at a point to form the image। An image formed by a diverging beam of light is called a virtual image। Here the light rays do not meet at a point but they appear to diverge from a point where the virtual image is formed। प्रकाश के एक अभिसरण किरण द्वारा निर्मित छवि को वास्तविक छवि कहा जाता है। यह प्रकाश किरणें वास्तव में से एक पर मिलती है। छवि बनाने के लिए बिंदु प्रकाश की डाइवर्जिंग बीम द्वारा निर्मित छवि को आभासी छवि कहा जाता है। यहाँ ही 8 किरणें एक बिंदु पर नहीं मिलती है लेकिन वह उस बिंदु पर विचरण करती है जहाँ आभासी छवि बनती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, वास्तविक और आभासी छवियों के लक्षण। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वास्तविक छवि, आभासी छवि। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कवरिंग बीम ऑफ लाइट। यह एक अभिसरण किरण द्वारा निर्मित होती है प्रकाश में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यह एक मोड़ द्वारा निर्मित है प्रकाश की किरण।
सेकंड, इट कैन बी क्राउड ऑन ए स्क्रीन। इसे स्क्रीन पर पकड़ा जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्राउड ऑन ए स्क्रीन। इसे स्क्रीन पर नहीं पकड़ा जा सकता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। यह हमेशा उल्टा होता है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। यह समान है। थैंक यू।